Good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar come training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anagha representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are here going to talk about the customized invoice format in Tally Prime. So before moving ahead to the topic, let's have a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. We are into multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations, and developments. We are also into the multiple softwares. First is Tally Prime, second is SAP Business One, third is Bittrex 24 CRM, and fourth is Skill India. So now moving ahead with the today's topic. So now the speakers are here. The presentation will be done by Miss Priyanka. So Priyanka, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the live demonstration will be done by Mr. Firoz. So Firoz, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, I am available here. Thank you. Okay, hearty welcome all of you. So I request Priyanka and Firoz to move ahead with your presentation. Yes, ma'am. Hello all. Welcome to weekly training session. Myself Priyanka, representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. Next slide. Here is a family of Rajlakshmi Solutions. Today we can see how we can use invoice in Tally Prime as per our requirement through customized invoice. So let's start with the introduction of invoice. An invoice is a time-stamped commercial document that itemizes and records a transaction between a buyer and a seller, which means invoice time-stamped commercial document होता है जिसमें हम transaction records and itemize कर सकते हैं between buyer and seller. Second one is type of invoice may include a paper receipt, a bills of sale, debit note, sales invoice or online electronic record. टाइप्स ऑफ इनवॉइस में पेपर रिसीव, बिल्स ऑफ सेल, डेबिट नोट, सेल्स इनवॉइस और ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंक्लूड होते हैं. In a next slide, we can see important elements of invoice. A good legal sound invoice should contain all the information the customer will need to make a payment and provide an avenue to address any questions. गुड लीगली साउंड इनवॉइस में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कस्टमर को पेमेंट के लिए यूज होती है एंड इट्स आल्सो प्रोवाइड एवेन्यू टू एड्रेस एनी क्वेश्चंस. सम एलिमेंट्स ऑफ इनवॉइस इंक्लूडेड दैट इज इनवॉइस नंबर, डेट ऑफ सर्विसेज रेंटेड, डेट ऑफ सेंडिंग इनवॉइस, contact and name of organization, name and contact of buyer, terms and condition, detail of each product and services, cost of product, tax rule, total amount, etc. In the next slide, given major functions of invoice. Company need to deliver invoice in order to demand payment. An invoice is a legal binding agreement showing both party consent to the quoted price and payment condition. As we know, every company को invoice deliver करने होते हैं to demand for their payment. इनवॉइस एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट के जैसे काम करता है जहां बोथ पार्टी का कंसेंट शो होता है फॉर देयर कोटेड प्राइस एंड पेमेंट कंडीशन. देयर आर सम benefits to using invoice, that is maintaining record, tracking for payment, legal protection, help for easy tax filing, business analysis. So in our next slide, we can see some important advantage of customized invoice. Today, people demand customization with custom invoice. You can create an invoice that match your brand and industry. As per today, people demand customization. They need customization in invoice. आप टैली में कस्टमाइज इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो जो आपके ब्रांड और इंडस्ट्री को मैच होता है. You can insert your logo, style, color, font, and appearance of header, activity table, and footer message in the invoice. These will help your invoice stand out from all other generic invoice. Another perk of custom invoice is that they can be used as a marketing tool. Another uses of customization invoice that कि आप इसे marketing tool की तरह भी use कर सकते हो. You can also use custom invoice as a personalized message like offer, thanking message,
or congratulations to the client. So overall, this was some function and advantage of customized invoice. Thank you so much, everyone. Hello everyone, myself Feroz Sayed, presenting live demonstration on behalf of Raj Lakshmi Solution Private Limited. So I will share my screen. So आपको तो पता ही है ऐसा कि कस्टमाइजेशन क्या होता है और कितना इम्पोर्टेंट है आज के पीरियड में। जैसे कि कस्टमाइजेशन की सभी सुविधाएं हम लोग के पास अवेलेबल है, जैसे कि आपको इनवॉइस रिलेटेड हो गई या फिर टैली में कोई अगर पार्ट आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है या पर जो भी इट इज आपको जो भी कस्टमाइज करना है वो सभी हम लोग के पास अवेलेबल है। जैसे कि इनवॉइस के भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, आपके रिक्वायरमेंट अनुसार वो भी हम प्रोवाइड करते हैं आपके लिए। हम लोग के पास कुछ ऑलरेडी बना हुआ है, एक आपको मैं वो एक डेमो बता देता हूँ। जैसे कि हम आगे टैली प्राइम में, ये मेरा कंपनी है एंड मेरे पास मल्टीपल्स ऑलरेडी बने हुए हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे कि मैं फर्स्ट वाला इनवॉइस ऑन कर लेता हूँ, ये इमेज 1 एक फॉर्मेट हो गया हमारा, ठीक है। इसको एक्टिवेट कर लेते हैं हम, यहाँ से एक्टिवेट हो गया है। सेकेंड वाउचर्स में जाकर करने, जैसे कि ये हमने कस्टमाइज इनवॉइस है, ये हमारे सेल इनवॉइस के अंदर बने हुए हैं। आपको जो भी इनवॉइस के अंदर बनाना है आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं सेल का लेता हूँ क्योंकि हमारा ये सेल का बना हुआ है, तो सेल वाउचर को अल्टर करना है। अल्टर करने के बाद में यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है यूज कस्टमाइजेशन फॉर्मेट, तो इसको यस करेंगे तो हमारा कस्टमाइज हुआ इनवॉइस आपको प्रिंट लेवल पर दिखेगा। तो हम देखते हैं आगे, मेरे पास ऑलरेडी इनवॉइस बना हुआ है, उसमें जाकर हम एक बार चेक कर लेंगे। पहले आपको मैं एक बार डिफॉल्ट वाला बता देता हूँ कि डिफॉल्ट वाला कैसा रहता है, आप सभी को भी पता ही होगा। अभी देख लीजिए, मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ, ये हमारा डिफॉल्ट वाला है। इसमें बेसिक डिटेल्स आती है जो टैली की तरफ से डिफॉल्ट में सेट किया हुआ है। अभी देखते हैं कस्टमाइज हुआ इनवॉइस, मैं सेटिंग में जाकर उसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, अब इसका प्रीव्यू देख लेंगे। इसको प्रीव्यू करते हैं हम। अभी देख लीजिए गिफ्ट इनवॉइस में और कस्टमाइज इनवॉइस में किस डिफरेंस है। अब इसको देखते हैं हम। अभी देख लीजिए कि हमारा डिटेल्स कहाँ आया है। बायर डिटेल, यहाँ पर बायर डिटेल एंड कंसाइनी डिटेल ये टॉप पर ही हमने ले चुके हैं। देन राइट साइड बॉटम पे हमने इनवॉइस डिटेल दिया हुआ है। बाकी ऑर्डर में कैसा है, टॉप लेवल टॉप बार पर ही पूरा डिटेल्स आता है। यहाँ पर हमने सभी तरफ कस्टमाइज किया हुआ है। देन नीचे पार्टी का जीएसटी भी नीचे दिया हुआ है एंड हमारा जीएसटी भी उसके नीचे दिया है। ये सेपरेट यहाँ पर हमने किया है। एंड सेकेंड हमारा स्टॉक आइटम रिलेटेड, अभी देख लीजिए यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं, जैसे कि जीएसटी का कॉलम हो गया, ठीक है। डिफॉल्ट वाले इनवॉइस में जीएसटी का कॉलम यहाँ पर नहीं आता है, तो उसमें सिर्फ रेट और यहाँ पर क्वांटिटी का कॉलम आता है डिफॉल्ट में। हमने क्या लिया यहाँ पर जीएसटी के आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये तीनों कॉलम ले चुके हैं, अमाउंट लिया है। अब इसका सेपरेट आ गया है। और सेकेंड लिंक्स हमारा जो बैंक डिटेल्स है, बैंक डिटेल्स भी देख लीजिए एक ही लाइन में हमने लिया हुआ है। अब ये कितना चेंज है, डिफॉल्ट से बहुत सारा चेंज हो चुका है। एंड लास्ट हमारा जीएसटी सेटअप भी दिया हुआ है। देन इसका ही सेकेंड पेज देखेंगे हम। सेकेंड पेज पर ओनली हमको टैक्सेशन का डिटेल्स दिख रहा है, टैक्सेशन का कॉलम आया है। सीजीएसटी एसजीएसटी का जो भी अमाउंट है यहाँ पर सेकेंड पेज पर सेपरेट डिस्प्ले कर रहे हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट इनवॉइस। अभी हम देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाले को हम एक्टिवेट कर लेते हैं। पहले इसको नो कर लेंगे, सेकेंड वाला एक्टिवेट, इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। देन यहाँ पर एड ऑन में ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल कस्टमाइजेशन, इसको यस करने के बाद में हमारे डिफॉल्ट प्रिंट की जगह पर कस्टमाइज प्रिंट आ जाएगा।
वाउचर लेवल पर भी एक बार एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिवेट है ऑलरेडी। अभी हम जाएंगे जो हमारा ऑलरेडी इनवॉइस बना हुआ है, एक बार चेक कर लेंगे इसका फॉर्मेट कैसा है। यहाँ पर अल्ट पे करके प्रीव्यू कर लेते हैं। प्रीव्यू करने के बाद देख लीजिए लास्ट वाले जो हमने कस्टमाइज जो बताया हुआ है उसमें अलग था एंड इसमें अलग है। अभी देख लीजिए इसमें एक्सपोर्टर में हमारा पार्टी का डिटेल आ गया है, हमारा बुक का डिटेल आ गया है, ऐसे उसके नीचे हमारा पार्टी का भी डिटेल आ गया है। बाकी डिटेल देख लीजिए, यहाँ पर सेपरेटली बाइफर्केशन किया हुआ है एंड नीचे यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी ऐड किए हुए हैं, जैसे कि मार्क एंड नोस कंटेनर, क्वांटिटी ऑफ केजी, रेट इन यूएस डॉलर, अमाउंट इन यूएस डॉलर। अगर आपका कोई यूएस डॉलर में आपका अगर कोई करेंसी रहेगा तो वो भी हम कस्टमाइज के थ्रू हमारे इनवॉइस में मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यूएस डॉलर का मेंशन हो गया है। एंड नीचे भी देख लीजिए ग्रैंड टोटल में भी यूएस डॉलर के साथ हमारा बेसिक हमारा इंडियन करेंसी में अमाउंट आ गया है। ये एक फॉर्मेट हो गया हमारा। एंड सेकेंड एक और उसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ये हमारा इमेज 3 हो गया। इसको यस करने के बाद में अभी वॉल्टरेशन में से इसको एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ पर भी ना उसके टर्म्स एंड कंडीशन सेपरेटली दिया हुआ है, जैसे कि हमारे डिफॉल्ट टैली में यहाँ पर ऑप्शन नहीं आती टर्म्स एंड कंडीशन के ये लेवल पर, तो ये कस्टमाइज लेवल पर इस टाइप दिखाया गया है इसमें। इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड इसके बाद में हम जाएंगे प्रिंट प्रीव्यू में। अभी हमारे यहाँ पर 4 से 5 कॉलम एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है। डिफॉल्ट में तो क्वांटिटी, रेट, पर एंड अमाउंट इतने 4 ही कॉलम आते हैं। एंड यहाँ पर डिस्पैच डिटेल में भी हमने डेट ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट नेम, यहाँ पर भी 3 पॉइंट ऐड किए हैं। इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में अभी देख लीजिए यहाँ पर बिल फ्रॉम आ रहा है, तो मैं फॉर एग्जांपल के लिए लेता हूँ मुंबई, देन बिल टू ले लेंगे पुणे। अभी टोटल बिल्स कितने हैं, मैं 10 ले लेता हूँ और फोल्ड ऑलरेडी हमने लिए हुए हैं एंड पीसेस भी ऑलरेडी है, तो मैं इसको एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे। नीचे यहाँ पर ब्रोकर नेम भी दिया हुआ है, जैसे कि हमको अगर कोई ब्रोकर रहते हैं उसका अगर नाम अगर मेंशन करना होगा इनवॉइस में, तो या उसके लिए भी यहाँ से ऑप्शन डाला हुआ है, यहाँ से हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं ले लेता हूँ ब्रोकर में एंड इसको प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेते हैं एक बार इसका। अभी देख लीजिए ये दोनों इनवॉइस से थोड़ा सा अलग ही दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पर हमारा कंपनी का जो नाम है वो बोल्ड में दिख रहा है और टॉप पर थोड़े बड़े फॉन्ट में दिख रहा है। ये भी कस्टमाइज किया हुआ है। देन यहाँ पर डिटेल्स भी प्रॉपर आ गया है, पार्टी डिटेल्स भी आ गया है, ट्रांसपोर्ट डिटेल्स भी आ गया है प्रॉपर। देन नीचे हमने जो कस्टमाइज के फील्ड में जो डाले हुए थे फोल्ड पीसेस मीटर, तो ये भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है। एंड हमने ये बेल डाले थे मुंबई टू पुणे, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। तो ये सभी सेपरेट यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी नीचे देखिए बैंक डिटेल भी सेपरेट आ गया है एंड टैक्सेशन कॉलम का भी सेपरेट दिख रहा है। ये सभी कॉलम वाइज यहाँ पर दिखाया गया है। ये इस टाइप एक फॉर्मेट हो गया हमारा। देन उसके बाद में और एक और ले लेते हैं। अभी मेरा इमेज 4, इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद F6 में से ऑप्शन यस कर लेंगे। न्यू डिस्क्रिप्शन, अभी हमने कॉलम डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये कस्टमाइज के थ्रू ये कॉलम दिया हमने डिस्क्रिप्शन के लिए। आपका जो भी
डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से हम मेंशन कर सकते हैं, वो प्रिंट पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको यस कर लिए, देन उसके बाद में मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ वाउचर लेवल से। वाउचर लेवल में भी देखिए टर्म्स एंड कंडीशन का सेपरेट कॉलम आया है। यहाँ पर जो भी हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है वो डाल सकते हैं यहाँ पर। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद एक बार इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेंगे। अभी मैं सेल इनवॉइस का ले लेता हूँ। पहले सेल इनवॉइस में देख लीजिए यहाँ पर कितना डिफरेंस दिखता है इनवॉइस में। अब तक जितने भी बताया उससे सबसे चेंज दिख रहा है ये। इसमें देख लीजिए कस्टमर के हिसाब से पूरी तरह से उसका रिक्वायरमेंट इसमें फिल किया है। अभी ऊपर टॉप बार पे हमारा डिटेल्स आ गया हमारे कंपनी का। देन यहाँ पर पार्टी का डिटेल भी आ गया है नीचे, एंड यहाँ पर टैक्सेशन का भी कॉलम प्रॉपर वे में दिख रहा है उसके अमाउंट के साथ। देन नीचे नोट हमने जो डाले थे वहां पर टर्म्स एंड कंडीशन में वाउचर अल्टरेशन में, वो भी यहाँ पर नीचे नोट में आ गया है। ये देख लीजिए कितना चेंज हो गया ये इनवॉइस। अभी इसको ये हमने देखे सेल इनवॉइस में। अभी एक इसका रिसिप्ट में भी देख लेंगे हम। अभी मैं स्किप कर लेता हूँ, ये अब रिसिप्ट में देख लेंगे। ये देख लीजिए रिसिप्ट इनवॉइस भी रेडी हो गया है। हम कोई भी इनवॉइस में कस्टमाइज कर सकते हैं, जो हमारा रिक्वायरमेंट है बस एक्सप्लेन करने, बाकी सब हो जाएगा सर। ये रिसिप्ट में भी हो गया। देन उसके बाद में दूसरा फॉर्मेट चेक कर लेते हैं हम। इसको नो करने के बाद में इमेज 6 इमेज 5 वाला एक्टिवेट कर लेंगे। एड ऑन में से ऑप्शन यस कर लेंगे। अभी इसका सेल इनवॉइस का भी प्रिंट चेक कर लेंगे हम। अभी देख लीजिए ये भी इस टाइप आ रहा है। ये सिंपल फॉर्मेट में हो गया। हमारा पार्टी का नाम, हमारा खुद का पार्टी का भी यहाँ पर ऊपर टॉप बार पे दिख रहा है। देन इसका कॉलम एंड ऑल डिटेल्स भी आ गई प्रॉपर। अभी हम इसको एक लोगो ऐड करके भी देख लेंगे ये इनवॉइस को। अभी लोगो एक्टिवेट करने के बाद ये लोगो में सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद में ओके कर लिया। ये इधर आ रहा है। नीचे उसका डिटेल भी पूरा आ गया है प्रॉपरली। अभी इसका ऑलरेडी बना हुआ है फॉर्मेट लोगो में। मैं आपको इतना ये होने के बाद मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सेकेंड उसके बाद और एक फॉर्मेट ले लेंगे। इमेज 6 वाला ले लेंगे। उसको कर लेते हैं। इन वाउचर अल्टरेशन में भी एक्टिवेट कर लेंगे। अभी देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है इनेबल न्यू इनवॉइस फॉर्मेट। यस करने के बाद हमारे दो फॉर्मेट ऑलरेडी बने हुए, तो मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं उसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इसका भी वाउचर प्रीव्यू देख लेंगे। अभी देख लीजिए ये भी फॉर्मेट सबसे अलग जनरेट होगा।
ये पार्टी का एंड हमारा सेपरेट सेपरेट आ गया है एंड इनवॉइस डिटेल्स भी राइट साइड में दिया हुआ है प्रॉपर्ली। इसका साइज पीसेस ये भी यहाँ पर कॉलम ऐड किया हुआ है। नीचे डिक्लेरेशन एंड सिग्नेचर डेट यहाँ पर वो उसके नीचे वाले पार्ट में हमने मेंशन किया। देन इसके बाद देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारा स्टैम्प और साइन का, क्योंकि हम हमारे रिपोर्ट वाले इनवॉइस पे सिग्नेचर भी और स्टैम्प भी सेपरेट भी एंड दोनों एक साथ भी हम प्रीवियस पे दे सकते हैं। एक्टिवेट कर लेते हैं हम एक्टिवेट कर यहाँ से सिग्नेचर एनेबल सिग्नेचर करना है। देन इसके बाद लोगो डालना है। अभी देख लीजिए, मैं जितना लोगों के साथ आपको दिखा देता हूँ इनवॉइस में। हमने सेल इनवॉइस के लिए लोगो बना हुआ है। अभी डिफॉल्ट वाला प्रिंट टेस्ट का डिफॉल्ट वाला होगा प्रिंट। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं आता। अभी हम ओनली सिग्नेचर ऐड कर लेंगे पहले। F6 से हमको हमारा सिग्नेचर मेंशन करना है। मेरे पास ऑलरेडी सिग्नेचर है। अभी मैं ये फर्स्ट वाले लेता हूँ ओनली सिग्नेचर। यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ जो मेरा सिग्नेचर है। मैं इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में वाटर लेवल पर आते हैं। वाटर लेवल पर इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे हम। तो नीचे देखिए हमारा जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर ऑथोराइज सिग्नेचर की जगह पर ऑटोमेटिकली आ गया है। ये हमारा कस्टमाइज पार्ट है, इसके लिए ये आ रहा है, डिफॉल्ट में आता नहीं एक्चुअली। ओनली सिग्नेचर हो गया। टाइप आपको दिखेंगे आप प्रॉपर वे में। सेकेंड उसका हमारा स्टैम्प के साथ भी ऐड कर लेंगे। इसको स्टैम्प के साथ ऐड करते हैं। मेरा सेकेंड वाला स्टैम्प और साइन जो है वो वाला लोगो ले लेंगे। यहाँ से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद एक बार हम प्रिंट चेक कर लेंगे। अभी देख लीजिए यहाँ पर आपको सिग्नेचर और स्टैम्प दोनों भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमारा ओरिजिनल है। ये हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। आपको जैसे यहाँ दिख रहा है वैसे ही एक्सपोर्ट होने के बाद में भी देखेंगे आपको। हमको स्टैम्प और साइन की जरूरत नहीं रहेंगी जब हम टैली से ये सेटअप कर लेंगे तो ओनली यहाँ से हमको शेयर कर देना है। ये हमारा स्टैम्प और साइन का फॉर्मेट हो गया। फिर उसके बाद में ये तो मेरे टैली में थे। अभी मेरे और भी फॉर्मेट बने हुए हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी देख लीजिए ये फॉर्मेट है मेरे पास। ये देख लीजिए स्टॉक रिलेटेड है। स्टॉक में जो भी डिटेल्स हमको सेपरेटली डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है ये उसके लिए बनाया हुआ कस्टमाइजेशन। अभी देखिए डिस्क्रिप्शन में स्टॉक रिलेटेड पूरा डिटेल स्टॉक पर दिख रहा है। देन ऊपर पार्टी का नेम एंड बिल डिटेल सब प्रॉपर वे में यहाँ पर आ गया है। देन LR नंबर, डेट, व्हीकल नंबर ये भी कॉलम ऐड किए हुए हैं। देन नीचे बैंक डिटेल भी हमारा सेपरेट कॉलम में डिस्प्ले कर रहा है। ये फॉर्मेट हो गया और एक फॉर्मेट होता है ये मेरा सेकंड फॉर्मेट। अभी देख लीजिए इसमें हमारे को हमारा जो लोगो है हमारी कंपनी का वो लोगो भी डाल सकते हैं हम। जहां पर बोले वहां पर लोगो डाल सकते हैं। यहाँ पर टॉप बार में डाला हुआ है। यहाँ पर
बॉटम पर भी डाल सकते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट वो हिसाब से डाल सकते हैं। अभी जैसे कि इसमें टॉप बार पर डाला हुआ है, सेकंड इसमें हमारा कंपनी का, हमारी खुद की कंपनी का अलग फॉन्ट में एंड बोल्ड में यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड अदर डिटेल्स पूरा प्रॉपर वे में यहाँ पर दिख रहा है मुझको। ये फॉर्मेट हो गया एंड ऑड फॉर्मेट है। ये वाला भी स्टॉक रिलेटेड ही है, स्टॉक का जो भी डिटेल्स है वो डालने के लिए ये वाला फॉर्मेट बनाया हुआ है। यहाँ पर आपको स्टॉक रिलेटेड पूरा डिटेल प्रॉपर वे में मिलेगा। एंड स्लीप अगर हमको बनाना होगा टैली में, कोई अलग से आपका स्लीप है, ट्रांसपोर्ट का हो या ऑर्डर को भी, वो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए लॉरी स्लीप है, लॉरी स्लीप देखिए, ऐसा कोई बता नहीं सकता कि ये टैली में से निकला हुआ है, एक्चुअली टैली में बनाया हुआ इनवॉइस है ये लॉरी स्लीप इसका नाम। इसका सभी डिटेल्स वाइज कॉलम में ऐड किया हुआ है। ये मैं और की फॉर्मेट बता देता हूँ। ये हमारा ऊर्जा का जो हमने पहले से देख रहे थे, जो स्टैम्प और साइन के साथ उसका ऊपर बॉटम लोगो भी आ गया, टॉप लोगो भी आ गया। अभी देख लीजिए ऊपर हमारे फॉर्म का नाम प्रॉपर वे में कलरफुल में दिखाई दे रहा है। तो आप इसी तरह आपका जो भी फॉन्ट है आपका कंपनी का, वो फॉन्ट हमको हमारे पास से कस्टमाइज करवा के ले सकते हैं। आपको जैसे भी इनवॉइस चाहिए वैसे सभी सुविधाएं हम लोग के पास आपके लिए अवेलेबल है। सो आपका जो भी पर्सन, जो भी राजलक्ष्मी का पर्सन आपसे कनेक्टेड है, तो प्लीज आप एक बार उनसे डिस्कस करो, आपका जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसके रिलेटेड। थैंक यू एवरीवन, दिस वाज फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Okay. Thank you, Priyanka and Firoz, for the presentation. So it's a time for overview of the today's session. So it's over to you, Bhagwati, sir. Yeah, thank you, Anga. Thank you, team. So, good evening, everyone. I am Bhagwati Jhandaria from Rajalakshmi Solutions Private Limited. So, invoice customization. Why we have need a invoice customization? एक default invoice, common invoice तो आप देख रही हैं टैली के अंदर में आपके स्टैंडर्ड कॉमन इनवॉइस है, जहां पर आप कुछ ऑप्शंस को इनेबल डिजेबल करके आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। लेकिन इनवॉइस एक कंपनी का प्रेजेंटेशन होता है जो मार्केट में कंपनी के एक ब्रांड को प्रेजेंट करता है, जहां पर हमें इनवॉइस को हम बहुत तरीके से देख सकते हैं। किसी भी इंडस्ट्रीज में इनवॉइस एक तो होता है कि कंपनी प्रेजेंटेशन की, हम अपनी कंपनी को, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है, हमारी जो स्टेशनरी है, उसको हम कितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमारे ब्रांड को मार्केट में लेके जाता है। तो उस कंडीशन में हमें अपनी कंपनी के इंफॉर्मेशन, लोगोज, ऑल दिस थिंग्स हमारे इनवॉइस में आने चाहिए। सो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं टैली के थ्रू। तो टैली में आपको अपने ब्रांडिंग करने के लिए आप अपने इनवॉइस को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। नॉट ओनली इनवॉइस, कोई भी वाउचर लाइक सेल्स, परचेज, रिसीट, पेमेंट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, एनी ऑफ द वाउचर्स जो आप चाहिए वो कस्टमाइज कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इनवॉइस कस्टमाइजेशन फिर क्यों जरूरी है? ब्रांडिंग एक सब्जेक्ट है। सेकंड इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज टैली हर एक इंडस्ट्रीज में फिट है। आज कोई भी कंपनी मार्केट में 90% स्टेक टैली का है, जहां पर एवरी कंपनी, चाहे ग्रोसरी हो, एफएमसीजी हो, मेडिकल हो, या आयरन स्टील हो, केमिकल्स है, इंजीनियरिंग है, सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज, या मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनियां, ट्रेडिंग वाली कंपनियां, ये सभी कंपनियां टैली यूज कर रही है और इनवॉइस का फॉर्मेट कॉमन है। लेकिन एवरी इंडस्ट्रीज के अपने कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं और उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपको अपने इनवॉइस को और अपने इनवॉइस में इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो लीगल टर्म्स में जो इंफॉर्मेशन है वो कॉमन है, लेकिन इंडस्ट्री स्पेसिफिक इज अ डिफरेंट।
जैसे आपको प्रोडक्ट के साथ में आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन काफी वाइड लेवल पे चाहिए, या आपको अगर एक्सपोर्ट का इनवॉइस है तो वहां पर कुछ अलग कॉलम्स हैं, कंटेनर नंबर्स वगैरह वगैरह। सेम वे अगर वो इनवॉइस केमिकल इंडस्ट्री से है तो वहां पर कुछ स्पेसिफिकेशन देने होते हैं, या वो अगर फार्मा का इनवॉइस है तो डेफिनेटली वहां पर आपको कुछ स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर्स नेम, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर्स वहां डालने होते हैं। तो लाइक वेरियस टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज, अब जैसे मैं कपड़े की बात करूंगा तो वहां पर स्टैंडर्ड यस आप मीटर या थान या बिल में आप बिलिंग कर सकते हैं सिंगल 1 यूनिट में, लेकिन यहाँ पर कस्टमाइज इनवॉइस के थ्रू आप वेरियस टाइप ऑफ यूनिट में आप इसका बिलिंग कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से उसको स्टॉक भी बैकएंड में मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर्स और आपके डीलर्स, अगर आप B2B में हैं तो आपके डीलर्स, B2C में तो आपके कस्टमर को इजी टू अंडरस्टैंड होगा कि आपने क्या बिल किया है। और आपके लोगों को, फॉर एग्जांपल आप कपड़ा बेच रहे हैं तो आपको वहाँ मीटर में बिलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको जब स्टॉक ट्रांसफर करना है, उसको स्टॉक ट्रांसपोर्ट में भेजना है तो आपको बंडल में चाहिए। तो आपके 1000 मीटर कपड़े को कितने बंडल्स में है वो आपके इनवॉइस में अगर दिख जावे तो आपका वेयर हाउस वाले पर्सन को इजी हो जाता है कि उसको इतने बंडल देने हैं जिसमें 1000 मीटर है। तो ये सभी चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज किया जा सकता है कस्टमाइज इनवॉइस के थ्रू। तो हमने आज आपको कुछ कस्टमाइज इनवॉइस सैंपल में दिखाया। ये आपकी और आपकी इंडस्ट्रीज की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आपके तरीके से कस्टमाइज किया जा सकता है। बहुत सी जगह ऐसा होता है एजेंट का नेम चाहिए होता है, बट टैली बाय डिफॉल्ट में एजेंट नेम नहीं आता, तो इस केस में आप कस्टमाइजेशन के थ्रू एजेंट नेम इनवॉइस में डाल सकते हैं। और इवन आप अपने एजेंट का अगर कमीशन का कैलकुलेशन भी है इनवॉइस वाइज, रिसीट वाइज, तो वेरियस टाइप ऑफ द कस्टमाइजेशन बैकएंड से आप करवा सकते हैं, जो कि अवेलेबल है, बहुत ही इजी गोइंग, बहुत ही एक कंफर्टेबल प्राइस में। आप हमारी कंपनी के जो भी आपके अकाउंट्स मैनेजर आपके साथ कनेक्टेड है, या आप मुझे भी आप डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको आपके चैटबॉट में अभी मिल जाएगा। सो आपको कस्टमाइजेशन किसी भी लेवल का हो, हमारी कंपनी आपको करके सर्विस दे सकती है। सेकेंडली, आप इनवॉइस कस्टमाइजेशन अपने इनवॉइस को बहुत इजी गोइंग करके आप अपने जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, लाइक इंफॉर्मेशंस है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशंस है, उसको आप अपने कस्टमर तक इजी गोइंग पहुंचा सकते हैं, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है और एक ट्रांसपेरेंसी और ज़्यादा बिल्ड होती है कस्टमर्स और आपके बीच में। That's it from my side. So, Anga, it's over to you. Okay, thank you, sir. So if anyone have any questions, you can mention in the chat box. So can you please check whether there are any questions? No, Anga, right now there is not any questions. अगर आपके पास ऑडियंस प्लीज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस है तो आप अपने हैंड को भी रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे और हम लोग डिस्कस यहाँ कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे, और आप अपने क्वेश्चंस को चैट बोर्ड में भी डाल सकते हैं। So right now, Anga, we have not any questions. Yes. So Okay. I think we can update the more information about our solutions. So Yes, sir. People, we are every month we are doing new things and new offers, new presentations, new products we are launching for your easy day-to-day life को easy करने के लिए we are doing these things. So आप हमारी कंपनी के आप देखेंगे कि आज की डेट में इनवॉइस कस्टमाइजेशन हमने आपको बताया, तो इस मंथ में हमने इनवॉइस कस्टमाइजेशन में हमने कुछ आपके लिए स्पेशल प्राइस और स्पेशल ऑफर्स रखे। अगर आपको इनवॉइस कस्टमाइजेशन करवाना है तो आप हमारी कंपनी के जो भी लोग आपके साथ कनेक्टेड है, जो अकाउंट मैनेजर आपसे कनेक्टेड है, आप उनके साथ कनेक्ट कीजिए और उसका एडवांटेज ले सकते हैं। इसके साथ साथ अभी हमारे पास अपकमिंग टाइम में आप सबको मालूम है 10 करोड़ से ऊपर जिनका भी टर्नओवर है 1 अक्टूबर से ई इनवॉइसिंग इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा।
तो टैली ने इनवॉइसिंग ऑलरेडी दे दिया है टैली के अंदर। सो आप बहुत ही स्मूथर वे में आप ई इनवॉइसिंग 1 अक्टूबर से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लागू कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप इम्प्लीमेंटेशन आप डायरेक्टली हमारी टीम से करवा सकते हैं, जिसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। सेम टाइम में मैं आपको बताऊंगा कि आज आउटस्टैंडिंग मार्केट में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है। आपने जो भी क्रेडिट में जो बिजनेस कर रहे हैं उनके आउटस्टैंडिंग काफ़ी मार्केट में होते हैं और वो ट्रैक नहीं रख पाते हैं कि मेरा आउटस्टैंडिंग कितना है, किसके किसके पास है, ओवरड्यू कितना हो गया और उसको फॉलोअप मुझे कब करना है, और जो मैंने फॉलोअप किया था तो लास्ट टाइम उस कस्टमर ने हमें क्या बोला था। तो इसके लिए हमारा आउटस्टैंडिंग एंड पेमेंट कलेक्शन फॉलोअप मॉड्यूल्स है, जिसके ऊपर हमारे इस मंथ में काफी अच्छा एक अट्रैक्टिव ऑफर है, जिसको आप यूज करके आप अपने कलेक्शंस को, कैश फ्लो को इंक्रीज कर सकते हैं और उसके एडवांटेज ले सकते हैं। सेम वे में हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ द सर्विसेज हैं, जहां पर आप प्री सेल्स मैनेजमेंट की हम बात कर सकते हैं, जहां पर आप अपने सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, जहां पर आप सीआरएम, आप बिट्रिक्स सीआरएम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आपका मल्टीपल ब्रांचेज है, मल्टीपल लोकेशंस है और मल्टीपल कॉम्प्लेक्स सिनारियो है, मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आप वहां पर SAP बिजनेस वन, SAP बिजनेस वन ERP को भी इम्प्लीमेंट अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा करके उसके एडवांटेज को ले सकते हैं। आप अपने स्टॉक डंपिंग, आप अपने कैश फ्लो, प्रोजेक्शन प्लानिंग, फॉरकास्टिंग, फाइनेंस प्लानिंग, बजटिंग, सिनारियो, वेरियस टाइप ऑफ द थिंग्स को, वेरियस टाइप ऑफ द डिपार्टमेंट को आप इनकॉर्पोरेट एक सिंगल वन सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं और इसके एडवांटेज आप हमारी कंपनी से ले सकते हैं। तो दिस इज ओवरऑल आइडियाज ऑफ द whatever services Rajlakshmi is providing, or you can get the advantage of these things. So आप इसके लिए आप जरूर हमारे से कनेक्ट कीजिए और इसका एडवांटेज आप लीजिए। So that's it from my side, Anga. Now you can, if you have anything is pending from your side, you can carry on. Okay. So soon this session will be uploaded in our YouTube channel. So be connected to our social media to get the latest updates. So thank you so much for joining us for the today's session. So now we'll wind up the session. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you. See you soon in the next sessions. Thank you very much. Bye. Thank you.